Good evening, ladies and gentlemen. The countdown has begun for the Gyanvapi survey. Tomorrow at 8 a.m., the locks on the basement of the mosque will officially be thrown open. The mosque committee is bound by a court order, and so is the administration of Varanasi to ensure that there is no repeat of last week's blockade. Rapped by the court for being disinterested in ensuring that the court orders are implemented, the local administration is taking no chances this time around. Security deployment has been beefed up and all stakeholders are being consulted to ensure peaceful proceedings. While the mosque side is still wary, the faithfuls are now optimistic that justice will be done to them and the truth buried under the Gyanvapi mosque will be finally out. Listen in. सर्वे का काम कल से शुरू हो रहा है। बहुत अड़ंगेबाजी लगी है, क्या लगता है अब पूरा हो पाएगा? 110% पूरा होगा और बहुत जल्दी पूरा होगा। बाबा खुद करवा रहे हैं इस काम को, तो फिर कहीं अरंगाबाजी हो ही नहीं सकती। अरे नहीं, हमने तो देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला ना वो मना कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि अभी हम मतलब इस पे ध्यान नहीं देंगे। लगता है कुछ सर्वे से क्या होगा? हमें कमेटी वाले बता सकते हैं, जो कमेटी वाले। अपन फीलिंग बताओ, क्या लगा था सर्वे से क्या होता? तो मान लीजिए कमेटी तो है ही, हम कमेटी से मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या लगता है कि ये सर्वे होना चाहिए? हम लोग का ये लगता है कि जब नमाज पढ़ते आएंगे पढ़ते रहेंगे बस। जब नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने से कौन मस्जिद मिटाने के तो कहाँ नमाज पढ़े जाएंगे? सवाल ये है कि जैसा हम लोगों ने सुना है कि कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि भाई अतिक्रमण की हुई भूमि पे कोई भी इबादत नहीं हो पाती या वो स्वीकार नहीं हो। तो अगर वैसा कुछ है तो उसको स्वेच्छा से लोगों को छोड़ देना चाहिए, नहीं वैसा कुछ है तो सर्वे हो जाने चाहिए। तो केवल गुम्बद बनाने से वहाँ पे मस्जिद बन जाएगी? मंदिर तो है ही ना है वह। तो मंदिर के अवशेष आपको लगता है कि वहाँ है, कुछ मिल जाएगा? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय अपना फैसला करेगी, जो उसके अंदर वास्तविकता है वो सामने आना चाहिए बस। But even now, the opposition to this is continuing. A petition was filed in the Supreme Court challenging the civil court's verdict. But the apex court was clear. They will not intervene at this juncture. They said that the advocate commissioner stays and the survey will go on, and then the petitioners can approach the court once again. Another attempt to delay the process stopped in its tracks. Now, that's not all, ladies and gentlemen. Yesterday, right after the verdict, we saw many politicians come out and call it an attempt to provoke. They said this was instigation and it would hurt social harmony. One such politician was the AIMIM chief Asaduddin Owaisi, who preached peace right here on Times Now. But he perhaps forgot to sound out that same advice to his own brother, because on the day the verdict came out, Akbaruddin Owaisi was seen paying obeisance at the tomb of the Mughal ruler Aurangzeb, a man who has razed many temples to the ground, including the one in Varanasi, which is the current matter of dispute, the Gyanvapi Masjid. Is this not an attempt to foment communal trouble? That's the question the BJP is now asking. इस मुल्क के साथ सही मायने में गद्दारी की औरंगजेब ने। सही मायने में अगर राजद्रोह लगाना है तो इस मुल्क के साथ जिस औरंगजेब ने गद्दारी की और उसके कब्र पर जिसने मत्था टेका, उन पर जाकर के राजद्रोह लगाइए। जातीय तेल नहीं मांगता है तो औरंगजेब की कब्र पर माला डालना ये क्या है? उसके ऊपर अभी नहीं बात करेंगे। The government in Maharashtra, led by Shiv Sena and Uddhav Thackeray, is under such pressure of Congress, NCP and its vote bank politics that it can file a case and book people for Hanuman Chalisa, but it can take no action on the likes of Akbaruddin Owaisi, who made a provocative and inflammatory speech in Maharashtra, who went and visited the tomb of terrorist Aurangzeb, who was responsible for demolition of so many Hindu mandirs and putting of jizya tax on Hindu. So the legitimate question on the news hour tonight, is this not an attempt to provoke? That's the question and that's the debate. Owaisi Aurangzeb Bab, that's the hashtag and the debate coming up.
You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. And joining me tonight on the news are Gaurav Bhatia, national spokesperson of the BJP, Shantanu Gupta, author. Also joining me tonight is Shoaib Jamai, Islamic scholar. But my first question goes to Mr. Farhan, who's the spokesperson of the AIMIM. Mohammad Farhan साहब, सीधा सवाल आज आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। ओवैसी साहब कहते हैं कि बहुत भड़काया जा रहा है मुसलमानों को और अब बाबरी मस्जिद 2 करवाया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि ओवैसी साहब क्या अपने घर में एडवाइस देना भूल गए हैं? क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी जाकर उसी औरंगजेब की मजार पर फातिहा पढ़ रहे हैं जिस औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर तोड़कर बना दिया था और कई और हजारों और मंदिर तोड़े हैं इस देश में। तो ये क्या भड़काना नहीं हुआ? देखिए मैडम, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जो प्रोग्राम था औरंगाबाद में, वो एक कॉलेज की संगे बुनियाद का प्रोग्राम था, एक शिलान्यास का प्रोग्राम था और वहां पर तमाम बच्चे एजुकेशन ले। आप लोगों ने उस प्रोग्राम को नहीं दिखाया, बल्कि आप ये दिखा रहे हैं कि औरंगजेब की मजार पर वो चले गए। उनका कोई ये कार्यक्रम बिल्कुल वो नहीं था फिक्स कि वहां पर क्या नाम जाके औरंगजेब की मजार पर वो चढ़ाना है, चादर चढ़ाना या फातिहा पढ़ना है। वो वहां पर गए थे तो उसके बाद क्या नाम है औरंगजेब की मजार पर भी चले गए और चादर चढ़ाया, फातिहा पढ़ा। इसमें बुराई क्या है? अच्छा, औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। तो आप मुझे बता दीजिए कि इस देश में मंदिरों को तोड़ने वाले की मजार पर आप जाकर वहां माथा टेकें, फूल चढ़ाएं, चादर चढ़ाएं, तो इस इज्जत अफजाई का कारण क्या है? मैडम ये बताएं कि ये आरोप आपके मिथ्या है। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि औरंगजेब साहब ने मंदिरें तोड़ी हैं। ये बात है बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। अच्छा, औरंगजेब ने मंदिरें ही नहीं तोड़ी तो आप नया इतिहास रचने वाले हैं। गौरव भाटिया जी, ना औरंगजेब ने मंदिरें तोड़ी तो इसलिए औरंगजेब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के सबसे बड़े आइकॉन हैं। इस देश में अब औरंगजेब की पूजा होने लगेगी और उंगलियां उठाई जाएंगी दैट हिंदूज आर प्रोवोकिंग, the Muslims are under attack. Please respond to Mr. Mohammad Farhan. Just yesterday, Navika, the pen of a magistrate showed its might and became mightier than the sword of Aurangzeb. And this is exactly the fear that the Owaisi brothers have. And it is very healthy. They should fear the democracy, the strength of other communities also. Mr. Akbaruddin Owaisi visiting the tomb of Aurangzeb, he forgets that Guru Tegh Bahadur was beheaded at the orders given by Aurangzeb. Now the Sikh community, the Hindu community is asking Mr. Akbaruddin Owaisi and the elder one, where do you stand? It's a clash of ideology, Navika. And Aurangzeb was an invader. He was a cruel hate monger. And people of our country can identify with Guru Tegh Bahadur Ji, Guru Gobind Singh Ji, Chandragupta Maurya, but not an invader like Aurangzeb. And I would also like to say these are the very same people who can't respect the verdict of the court, because yesterday Mr. Asaduddin Owaisi was seen saying that हम दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहते हैं। अरे जितने मंदिर आपने तोड़े हैं उतनी मस्जिदें अगर इलीगल हैं through the rule of law, you will have to give up those mosques, because those mosques are symbol of atrocities committed on Hindus, the Sikhs and the Jains. And this is what these people need to know who only spew venom in our country.
Well, I want to ask Shoaib Jamai. Shoaib Jamai, is Aurangzeb the new poster boy for a community? Because that's what is the attempt by Akbaruddin Owaisi and the AIMIM. Because today, suddenly, because the Gyanvapi Masjid is, going to be videographed tomorrow, so you must find another way to provoke. And provocation by Muslims is fine, but provocation by Hindus is unacceptable. Is that the new position? Navika, as I already said, that we saw the same modus operandi which was operated in case of Babri Masjid Ayodhya controversies. The same modus operandi. पहले कोर्ट में जाएंगे, फिर मूर्ति प्रकट होने की बात करेंगे, फिर उसके बाद 6 दिसंबर 1992 की तरह उसको ध्वस्त कर देंगे। जब अयोध्या का मामला आया तो आपने भी कहा, सब ने कहा कि नहीं ये बस अब खत्म हो गया जी, ये बहुत बड़ा मामला लंबा चला था, अब ये हमने कहा था कि नहीं, मुझे यकीन ही नहीं है, पेंडोरा बॉक्स बहुत लंबा है, ये गो एंड ऑन चलता रहेगा कंटिन्यूअस और ये ख़त्म नहीं होने वाला। यही कुछ आज आप देख रहे हैं। पहले बाबर के टाइम में, वो अयोध्या के टाइम में बाबर के नाम पर हॉन्ट किया जाता था मुसलमान, देखो मुसलमान बाबर को मानता, कौन नहीं करता। अब औरंगजेब के लिए आ रहा है। भाई इस देश में हर बार मुसलमानों को आप क्यों टारगेट पे लेते हैं? औरंगजेब की मजार पर अब तक तो नहीं जा रहे थे, अब क्यों जाना शुरू हो गए? ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए कि आप बताइए ना, आप देश की बहुत बड़ी एंकर है, यू आर मोस्ट प्रोमिनेंट एंकर इन द कंट्री। जो कुछ आज देश में हो रहा है, कभी कुतुब मीनार, कभी ताजमहल, कभी कुछ तेजो महल बोल रहे थे, कोर्ट ने कहा जाओ जाके पीएचडी करो, एमए करो, रिसर्च करके आओ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं चलेगा। मारा ना एक तमाचा कस करके। ये कौन थे? बीजेपी के नेता ही थे अयोध्या के, जो रजनीश, जिन्होंने ये पिटीशन डाली थी ताजमहल। तो ये सब बीजेपी करवा रही। आप बताइए ना, एज ए एंकर होने के नाते, क्या ये सही हो रहा है? ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा क्या? युवाओं के एस्पिरेशंस के साथ ऐसे देश तरक्की करेगा हमेरा? रोज एवरीडे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, उसके अलावा भी कुछ है या नहीं है देश में? ये पेंडोरा बॉक्स लेके खोल के बैठ गए। तो इट्स अ वेरी सैड अफेयर्स इन द कंट्री एंड आई बिलीव दैट दिस विल गो एंड respond to Shoaib Jamai, who's very worried about the development of this country today. शाहीन बाग में सड़कों पे बैठे हुए थे, तब इनका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा था, अब हो रहा है। No, you just see what Gaurav Bhatia said. He said that the देश में जितने भी दंगे होते हैं वो बीजेपी और आरएसएस करवाती है। See, चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा। ये देखिए, ये गौरव भाटिया है ना, क्या कह रहे हैं? नाविका, जूम कीजिए जरा, जूम दिखाइए इसको। नाविका, भाटिया कह रहे हैं। चलिए शोएब जमाई जी, आपको जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया जी, सुन लीजिए जी गौरव जी। सुनिए नाविका, the terminology that he uses, the scant respect he has for other religions, he said मूर्तियां प्रकट हो गई। I would not say अल्लाह प्रकट हुए या नहीं हुए, मैं इनसे नहीं कहूंगा धरती गोल है या अभी भी चपटी है, but let me expose this person who is sitting. You know his own tweet, what does he say after the Ayodhya verdict? I have it in my hand. He says, कैसे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का गला घोट रहा था और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये शोएब जमाई, सर्वोच्च न्यायालय इंसाफ का गला घोट रहा था। अब प्लीज चुप करा लीजिए। नाविका, whenever he speaks, I'll be quiet because we need to maintain decorum. Please, he's getting exposed. He's very worried right now. Lowering his fader. So Navika, the second point he said. Yes. Thank you. Navika, the second point, what is the difference between us and between people like Shoaib Jamai and Owaisi's? Taj Mahal verdict came yesterday. We accept it because that is what we are supposed to do, duty bound. But at the same time, थप्पड़ गिनवा रहे थे, अब गिनिए। अयोध्या का वर्डिक्ट आया, थप्पड़ पड़ा, काशी का आया, एक और थप्पड़ पड़ा, और मथुरा पे भी कल ही वर्डिक्ट आया, एक और थप्पड़ पड़ा। एंड अनदर ऑफ हिज ट्वीट आई विल रीड, ही सेड अब अगर कोई दोबारा मथुरा और काशी में मस्जिद तोड़ने की बात करेगा
तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा. Navika threatening people. When Hindus being so tolerant take the route of law, they go to the court and they win because they have credibility and evidence. These people come out with swords or threaten them with their words. That is the kind of anarchy they want in the country, which will not be tolerated, be it the Owaisi brothers or be it this Shoaib Jamai sitting here. Well, Shoaib Jamai, now I want to ask you, provocation and stalling justice, is this the way you want the disputes in this country to be resolved? शोएब जमाई, आपको बोलना है या आप वीडियो ही देखते रहेंगे अपने फोन पर? नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पर जवाब तो मुझे लगता है आपको भी पूछना चाहिए कि जो गौरव भाटिया कह रहे थे, अभी इसमें कह रहे देखो मेरठ में दंगे किसने कराए, बीजेपी ने, आरएसएस ने करवाए, अराजकता वाली है। आप इस बात का जवाब दे दीजिए जो गौरव भाटिया भी उठा रहे हैं, इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि आपने ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट गला घोट रही है, सुप्रीम कोर्ट गला घोट रही है। आज ताजमहल का वर्डिक्ट आता है तो आप कहते हैं थप्पड़ लगा। अरे भाई, आज सुप्रीम कोर्ट गए थे ना वीडियोग्राफी दोबारा रुकवाने के लिए, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से तो आप वीडियोग्राफी रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे वीडियोग्राफी रुकवाने, वहां से भी तो थप्पड़ पड़ा ना कि अभी नहीं रुक रही। फिर आइएगा। मैं एक स्टेटमेंट देता हूं नाविका जी, आप ही बताइएगा मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 10-15 सालों तक चलता है और सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे कि भाई ये मंदिर है, मैं मान लूंगा, मैं कहूंगा ठीक है जी, ओके। अगर ये सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं ये मस्जिद ही है, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, इसकी स्थिति चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू 91 लॉ, तो क्या आप मानेंगी? आप गारंटी देती है ना, आप मान लेगी ना कि वो मस्जिद ही है? अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे, गौरव भाटिया मान लेंगे ना? ये आज गारंटी दीजिए, मैं दे रहा हूं, मैं मानूंगा। तो शांतनु गुप्ता जी, suddenly we have Shoaib Jamai, who is the follower of the law and the courts of the land, and he wants an undertaking from you whether you will abide by the Supreme Court's verdict on Gyanvapi whenever it comes. I think in any such case, Hindu side have been very diligently following the verdicts of any court, be it Supreme Court, High Court or a lower court. I think that's not a point. I think debate we started with how the leaders of AIMIM are making heroes out of Aurangzeb. I think I'll be very worried, Navika, if someone like a Muhammad Ghori, Muhammad Ghazni, Qutubuddin Aibak, Babar, Aurangzeb are heroes of Indian Muslims. I'll be very, very worried. Right, and Gyanvapi, the Vishnath temple was not attacked one; it was attacked by Gauri, it was attacked by Lodi dynasty. Then and Aurangzeb tried twice, not even once. Once he failed, and then he went again. But Hindu side were resilient. Sometimes was Raja Todarmal, sometimes was Narayan Bhattji, sometimes was Ahilyabai Holkar, and now it's Narendra Modi who rebuilt the temple again. And now with the court order, the court is saying go inside the mosque, do the videography and find out what's the truth. And plea क्या है राखी सिंह जी की? राखी सिंह और 5 औरतें जो कोर्ट में गई हैं, they just want to pray मां श्रृंगार देवी, that's all. They can do it only once a year. Can we do it daily? Hindu side की plea भी और कुछ नहीं है अभी तो. The only plea is, can we just go inside the temple and pray my deity? In a country where Hindus are majority, we have to go to a court to ask a permission to pray our deity, right? और मुस्लिम डरा हुआ है. After all of this, Muslim डरा हुआ है. So I think I'm very happy that the courts are giving rightful verdicts. In fact, I just show these 2 books which every Hindu should have. It is called Hindu Temples, What Happened to Them. It has evidence of 2,000 such mosques which are built over temples, and it says the Islamic evidence. The evidence is all Islamic. Even there is no Hindu evidence. Islamic texts, Islamic scholars, the biographies written on Aurangzeb, Babar, they are telling that how temples are broken and mosques are built. There are 2,000 evidences just in this book of Sitaram Goelji. So I think I rest my case. Well, Shoaib Jamai, is Aurangzeb a new hero that you've discovered? Is he the hero? औरंगजेब हीरो था या नहीं था, मैं आपके ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल कल पढ़ रहा था जिसमें राघवेंद्र शुक्ला ये लिखते हैं
कि 1659 में औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया कि बनारस में जितनी मंदिर है उसकी हिफाजत की जाए, उसकी सुरक्षा की जाए। ये राघवेंद्र शुक्ला लिखते हैं कि औरंगजेब ने बाला चित्रकूट मंदिर के लिए जमीन दान की, आसाम में मंदिर के लिए जमीन दान की, और औरंगजेब से जब लड़ने आए सूजा और वो शिवाजी के साथ जब लड़ाई शुरू हुई तो वहां पे औरंगजेब का साथ दिया यहाँ से हिंदुओं ने, आसपास के जितने ब्राह्मण और राजपूत थे, और वहां पे बाद में जो है लड़ाई शुरू हुई। तो जो राघवेंद्र शुक्ला कह रहे हैं, आपकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, मैं मान रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर औरंगजेब के बारे में आप चर्चा कीजिए, वरना आप अपने चैनल में या अपने ऑर्गेनाइजेशन वाले को क्यों लिखने देते हैं ऐसा? की किताब नहीं पढ़ रहे और उनको नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कहा सनराइज ओवर अयोध्या, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर को वहां गिराकर मस्जिद बनाई थी। तो सलमान खुर्शीद में आप विश्वास नहीं रखते, क्या ये सही है? नहीं रखते। मुझे नव भारत टाइम्स पे ज्यादा यकीन है और नव भारत टाइम्स के इस आर्टिकल पे ज्यादा यकीन है, सलमान खुर्शीद पे भरोसा नहीं है। मैं उसी पे यकीन करके औरंगजेब को अच्छा मान रहा हूं। अब आप बताइए राघवेंद्र शुक्ला सही है, सच्चे हैं, या आपका चैनल झूठा है या आपकी अखबार झूठी है, ये बता दीजिए। और मैं वो आर्टिकल अभी आपको दिखा देता हूं। कुछ लिखता है तो एक डेमोक्रेसी में उसकी आर्टिकल छापने का पूरा अधिकार है उसको, तो ये डेमोक्रेसी है। ये नवभारत टाइम्स ने नहीं प्रोपोगेट किया हुआ है, ये नवभारत टाइम्स का ये नवभारत टाइम्स का अपना फैक्ट फाइंडिंग कमीशन नहीं है। ये किसी ने लेख लिखा है, उनकी अगर वो मान्यता है तो उन्होंने वहां पर जाहिर की है। शांतनु गुप्ता जी, ये शोएब जमाई की ये एक नई आर्ग्यूमेंट आ गई है। सारी पूरी डिबेट में अटकाने, भटकाने और भड़काने का काम हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्यों डरे हुए हैं? I think I'm very surprised that someone like Shoaib Jamai, who calls himself a scholar, his source of knowledge is a newspaper article. He will not go by what meticulously Sitaram Goel and his team has documented, what H. Baker, Prince of J, Lockett Field, multiple Western scholars, Islamic scholar, बाबरनामा में लिखा है। औरंगजेब पे जो बायोग्राफी उसमें लिखा है, जो उनके मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखी है, उसको नहीं मानेंगे। हाँ, नवभारत टाइम्स के एक ऑनलाइन लेख पे इनका पूरा स्कॉलरशिप बेस्ड है। आई थिंक योर गेस्ट टीम हैज टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलर्स यू वांट टू ऑन द डिबेट, जिनकी सारी डिबेट किसी भी पेपर के, चाहे आज उनको नवभारत टाइम्स मिल गया। देखिए, औरंगजेब ने किसी मंदिर, मान लिया किसी मंदिर के लिए जमीन दान दी, वो तो वोट पाने के लिए, तब सत्ता चलाने के लिए कुछ किया होगा। वोट पाने के लिए आज भी राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, आज भी प्रियंका गांधी टीका लगा के फैंसी ड्रेस घूमती है। उससे क्या वो हिंदू हृदय सम्राट बन जाते हैं? नहीं बनते ना। मन में तो वही है उनके कि कांग्रेस के मन में क्या है कि राम इज इमेजिनरी, भगवान राम इमेजिनरी है। सो मैं कहता शोएब जमाई, आपके सामने स्कॉलर लिखा जाता है, रीड सम स्कॉलरली थिंग। अ न्यूज़पेपर आर्टिकल कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर ए स्कॉलरली डिबेट। नाविका जी, मुझे बहुत आपत्ति है। फरहान साहब, आपको भी अब ऐसा लगता है कि औरंगजेब ने इस देश को बनाया, औरंगजेब की वजह से आसाम में मंदिर है, इसलिए औरंगजेब आजकल इंडिया का एक नया हीरो है? क्या आप मानते हैं? और जरूर बताइएगा कि शिवाजी जो औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे, जिसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं महाराष्ट्र में आपकी पार्टी द्वारा, शिवाजी ज्यादा बड़े हैं या औरंगजेब आपका हीरो है? देखिए मैडम, एक बात बता देना चाहता हूं आपको। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज धर्म का राजनीतिकरण कर रही है और उसके बाद क्या नाम है, इसका वो सीधा लाभ राजनीति में लेना चाहती है। धर्म को छोड़ दीजिए ना, आप औरंगजेब की बात बताइए। औरंगजेब का धर्म से क्या लेना देना? अरे मैडम, अरे औरंगजेब का धर्म इस्लाम था, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए फिर। देखिए, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति का धार्मिककरण कर रही है, उसको उसके ये एजेंडे में है। क्योंकि आपको पता होगा, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने ये बात की थी कि अयोध्या तो अभी सिर्फ झांकी है, बाकी काशी मथुरा बाकी है, ये बात कही थी। उसी एजेंडे को ये पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम एक बात साफ बता देना चाहते हैं, ज्ञानव्यापी मस्जिद ही है और इंशाअल्लाह आगे भी वहीं पर रहेगी। और
यानी कि और सुप्रीम जिस तरीके से आज कोर्ट, पूरे यानी हिंदुस्तान कि में, हाई सुन लीजिए मैडम, कोर्ट, यानी कि सिविल एक मैडम मेरी बात कोर्ट, तो इन सुन लीजिए, सब का कोई मेरी बात। मतलब आज नहीं जिस है। तरीके से मैडम एक बात सुन लीजिए मेरी बात, आज जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर देश की दूसरी बड़ी आबादी को टारगेट किया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। आपसी सौहार्द को बिगाड़ने ये अच्छी बात नहीं है। इससे हमारे बिरादराने वतन के पेटिशन अगर कोर्ट में जाए तो आपसी सद्भावना खत्म हो जाती है, लेकिन औरंगजेब की मजार पर जाने से, फातिहा पढ़ने से, फूल चढ़ाने से, चादर चढ़ाने से सद्भावना बढ़ती है। गौरव भाटिया, प्लीज रिस्पॉन्ड टू मोहम्मद फरहान। देखिए नाविका जी, मैं इतना ही पहले अर्ज करूंगा, जैसे जैसे हो रहा है पूजन, इनके चेहरे की बढ़ रही है सूजन। और वी डोंट नीड टू बी अपॉलोजेटिक अबाउट अयोध्या, काशी, मथुरा, अयोध्या, काशी, मथुरा एंड एवरी अदर टेम्पल that have been destroyed by an invader. We will take it back through rule of law, through the courts, not on the power of the sword that was wielded by Aurangzeb, but by the strength of our constitution and collective will of the people. Second, Shoaib Jamai was saying, काशी में जो भी जजमेंट आएगा नाविका जी हम मान लेंगे। अयोध्या का ट्वीट देखा है, अयोध्या तो नहीं मान पाए, काशी ये लोग मान लेंगे। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट ये कह रहे हैं औरंगजेब हिंदुओं को बचाता है। अरे हिंदुओं को क्या बचाएगा, अपने वंश को तो बचा नहीं पाया, साम्राज्य को बचा नहीं पाया, पिता को जेल में डाल दिया। और मैं एक बात बता दूं, द हिंदू कम्युनिटी एंड द सिख कम्युनिटी आर ऑल्सो योर ब्रदर्स इफ you can introspect. Ask them what was done to Guru Tegh Bahadur, Guru Gobind Singh Ji's children, and then you will realize how disconnected you are with the Indian sentiment and how connected you are with the Pakistani sentiment. That is all I have to tell these people who do not even know where their roots lie. Well, Farhan Saab or Shoaib Jamai ji. I want to respond. Okay, respond to Gaurav Bhatia. मैडम एक प्रश्न, मैं गौरव जी से एक चीज पूछना चाहता हूं। Let's respond. Navika, I have just asked a very simple question कि भाई आप गारंटी दें कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा, अगर आपके खिलाफ ऑर्डर देगा तब मानेंगे नहीं मानेंगे, अभी तक जवाब नहीं मिला। नंबर 2, भाई अभी शांतनु जी ने कहा कि भाई आपकी स्कॉलरी जो है वो आर्टिकल पे बेस्ड है। भाई मैं किताब का नाम ले रहा हूँ, DN झा एक इतिहासकार हैं, आप भी जानते हैं, उनकी किताब है नोटेड अगेंस्ट द ग्रेन। उसमें उन्होंने लिखा कि कई हिंदू राजाओं ने हजारों बुद्धा स्तूपा को तोड़ के मंदिर बना दिए, अशोका, चालुक्य, जुगना, और कहा कि हिंदू राजाओं ने हिंदू मंदिर भी तोड़े और जा जाके वहां लूट का माल लेके आ जाते थे, क्योंकि अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते। तो क्या फिर उन बौद्ध समाज के मानने वाले जो दलित हैं, आप उनको उनके बुद्धा स्तूपा वापस करेंगे? इतिहास को अगर रेक्टिफाई करना है तो सारा रेक्टिफाई कीजिए। मैं 10,000 की लिस्ट दे देता हूं आपको, वो सब मंदिर उनको सौंप दीजिए जो दलित हैं, जो अंबेडकर के मानने वाले, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। ये तो भाई DN झा इतिहासकार अपनी किताब में लिख रहे हैं। शांतनु जी जरा जवाब दीजिए इसमें थोड़ा। Shantanu, to you first and then you to know, Gaurav Bhatia. Navika, tonight it has been a... Shantanu. Navika, since Indira Gandhi has given the intellectual power to the leftists in the country, there are many such leftist historians who have croaked and skewed Indian history. I think that's not my reference. I think the worry point again and again is that, is Aurangzeb our hero in this country or not? Is Aurangzeb the hero of Indian Muslims? Rubbish. Is Qutbuddin Aibak, Gauri, Ghajni, Babur are the heroes of the Muslims of this country? It has to wait for 70 years. We have to wait for 70 years to remove a road of the name in High Street, Delhi. Shantanu, no, you tell me, is Aurangzeb your hero or not? Very pertinent question. Is Aurangzeb your hero? What DN Jha I think that's the debate we started right from. Or not?
No, we can have a debate on the number of books that have been written. Are we going to be dictated by these books that have been written, or are we going to be dictated by the courts? But why don't you answer the question of the debate tonight? Because the debate is about Aurangzeb. Is Aurangzeb your hero? That is the question, Shoaib Jamai. Is Aurangzeb the new hero? Is this the politics of provocation that you are following? Answer that question. लीडरों ने बनाया औरंगजेब के हीरो ब्राह्मण और ऊंची जाति के हिंदू इतिहासकारों ने बनाया, हमने नहीं बनाया। So the one single Muslim historian who has said anything about Aurangzeb पूछूंगी, आप हिंदुओं के नुमाइंदे कब से हो गए? आप हिंदुओं के नुमाइंदे कब से हो गए? आप इतना बता दीजिए, आपके लिए जिस तरह ओवैसी साहब के लिए औरंगजेब नए हीरो हैं, आपके लिए औरंगजेब हीरो हैं कि नहीं? औरंगजेब, मुगल, बाबर, आपके लिए औरंगजेब हीरो हैं कि नहीं? हो सकते हैं, राघवेंद्र शुक्ला के लिए हो सकते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर राजपूतों के लिए वो हीरो हो सकते हैं तो मेरे लिए भी हो सकते हैं। चलिए गौरव भाटिया, औरंगजेब is the new hero. Aurangzeb is the new hero for the minority community, because that's what Owaisi represents. That's what Shoaib Jamai is talking about. Gaurav Bhatia, you know, it's QED. Navika, it's been a fantastic debate for a revelation that has been made on your show. You know, last 10 years we have been debating, all these people come and they say we are the minority khatre mein hai. Today, on your channel there is an admission. They said second largest majority. तो कम से कम ये माइनॉरिटी से सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी तक का सफर हो गया. इंडिया इज रियली चेंजिंग अंडर मोदी जी. सेकंड, यू नो, ये डर अच्छा है. जो लोग कहते थे 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, जो लोग कहते थे कि मंदिरों को तोड़ा जाएगा, आज कह रहे हैं हमारी दूसरी मस्जिद ना चली जाए. और कैसे चली जाए? कानून के सहारे. आई थिंक हिस्टोरिकल ब्लंडर्स दैट हैव बीन made in the past, not corrected due to appeasement politics by the Congress, are now being corrected by Shri Narendra Modi ji's government and the people of our country. This change is very welcome, and I think it augurs very well for our democracy. Well, when there is a constitution in a country like India, then constitution and the court procedures will take precedence, and everybody will have to go by the law of the land. But the sudden politics of provocation, to point fingers at one majority community but not to look at the minority community and its own provocation, is clearly politics that's playing out. Asaduddin Owaisi will have to think, what is the route that he wants to follow? The constitution, or is it going to be mobocracy and provocation? That's the big challenge. Thank you very much to my panelists for joining me on debate number 1.